हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति बेस क्लासरूम से। मेरे पुराने वीडियो में मैंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था और उस दिन बोला था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पहले एक स्टेज होती है जिसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पीएलसी के ग्राफ में भी दिखा होगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज इज लाइक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, एंड इट इज जस्ट लाइक जैसे किसी भी माँ के अंदर जो बच्चा 9 महीने रहता है उसके बाद उसकी डिलीवरी होता है, देन द चाइल्ड जस्ट स्टार्टेड टू लिव हिज और हर लाइफ. So new product development is just like the conception phase of a child in her mother, in his or her mother. So आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक नए प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करते हैं और ये प्रोसेस है क्या. जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनपीटी इज व्हाट कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इधर और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन or any new brand that the company wants to offer to its customer. So there is a process of developing a new product. So that process is all about this. So new product development process starts with idea generation. The second is idea screening, concept development and testing, market strategy development, business analysis, product development, test marketing and commercialization. हम एक एक करके सारे स्टेप्स को समझते हैं. As मार्केटिंग की हम अगर बात करते हैं तो मार्केटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर. सो वेयर आर दीज कस्टमर्स? So these customers are available in the market. So by conducting survey or research, the company just identify what are the problems, what are the expectations, what are the needs and wants of the customers, and whatever the findings after conducting survey or research, those findings, those inputs or the feedback are brought into the organization. सबको लेकर आया जाता है और कंपनी के लोगों के बीच में डिस्कस किया जाता है कि these are the problems or the expectations of the customers जिसपे that we have to work on. So the first step is what? Idea generation. The concerned person or the concerned marketing manager who has been given the responsibility of developing a new product, he or she just asks the suggestions or different ideas from all the concerned or the expert people of the organization. These experts or the key people of the organization basically provide suggestions or their ideas. अब सारे आइडियाज को तो कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी नहीं. यहाँ पे कंपनी क्या करती है? रिलेवेंट आइडियाज को आगे बढ़ाती है और जो इररिलेवेंट आइडियाज होते हैं या फिर कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक से आइडियाज होते हैं जिसको प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको स्क्रीन आउट कर देना. एंड फर्दर those good ideas or relevant ideas will be taken into further consideration. So that is the idea screening. Means idea generation is just like inviting or creating a pool of suggestions, and idea screening means just pick out the relevant or the practically implemented ideas will be taken further. The third step is concept development is testing is all about preparing a blueprint or a blueprint or a sketch of the future proposed product. जो भी आइडियाज आए हैं उसको कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट या फिर हम स्केच बनाते हैं अपने आगे समय में जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे. इट इज जस्ट लाइक जैसे हम घर बनवाने से पहले क्या करते हैं? एक नक्शा तैयार करवाते हैं आर्किटेक्ट से कि हमारे घर में किस किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा. इट इज जस्ट लाइक दैट. So concept development and testing is all about preparing a blueprint or a sketch of the future proposed product. Next step is marketing strategy development. Here the company just determine the elements of what 4Ps कि प्रोडक्ट कैसा है, हम क्या उसकी प्राइसिंग रखेंगे, हम कहाँ कहाँ उसको अवेलेबल कराएंगे, एंड हम उसके बारे में अपने कस्टमर्स को कैसे इन्फॉर्म करेंगे. So determination of the elements of the 4Ps is being done at this particular stage of the process. Next step is business analysis. In this step, the company just analyze
the resources that the company is having. मीन्स कंपनी यहाँ पर अपना SWOT एनालिसिस एक तरीके से करती है कि हम जिस तरीके का प्रोडक्ट या जिस तरीके के हम ऑफरिंग को कस्टमर्स को मार्केट में अवेलेबल कराना चाहते हैं, क्या हमारी कंपनी इतनी रिसोर्सेज है कंपनी के पास, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल, मीन्स उतनी मशीनरी है, पैसे हैं, लोग हैं कि नहीं है, या फिर कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, सो दैट कि उस ब्लूप्रिंट को आप फिजिकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनटू अ प्रोडक्ट. So business analysis is all about analyzing the situation of a company, that the company is either having enough resources or not. If the company finds yes, we have the resources, so the company just move forward to the next step, that is product development. It is that stage जहाँ पे हम प्रोडक्ट को फिजिकली फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि जो आपने स्केच और जो ब्लूप्रिंट बनाया था, इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, उसको हम फाइनली बनाते हैं. बट हम इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पर बना रहे हैं, हम छोटे छोटे सैंपल्स में बनाते हैं, और उन सैंपल्स को जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है टेस्ट मार्केटिंग, सो उन सैंपल्स को हम यूज करने को देते हैं कुछ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स में बी सम ऑफ योर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सम ऑफ द कस्टमर्स that you find in the market. So test marketing is all about what? Checking out the response of the future proposed product, कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो उन लोगों को कैसा लग रहा है. It is just like a testing. So in test marketing the respondents find yes, the product is good, the product is up to the expectation of the customers, so the company finds confident and the company just decides to commercialize that product. Commercialization is all about what? Making the huge quantity or the larger quantity of the product, because the company has checked out the response or the feedback of this future proposed product. So अगर सब कुछ अच्छा है तो क्यों ना हम प्रोडक्ट को, अब एक दो प्रोडक्ट तो कंपनी बनाती नहीं है, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है जनरली बल्क या बंचेस में बनाती है. सो कमर्शियलाइजेशन इज ऑल अबाउट व्हाट? मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन लार्जर और ह्यूज क्वांटिटी. नाउ आफ्टर कमर्शियलाइजेशन means the product is now ready, the company is having the ready made stock of the future proposed product. Now जो हम लोगों ने पीएलसी वाले डायग्राम में देखा था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है? इंट्रोडक्शन. सो नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. सो यहाँ से हम फर्दर लिंकअप कर सकते हैं पीएलसी के कॉन्सेप्ट को, यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपने परफॉर्म किया एंड नाउ यू हैव इनफ क्वांटिटी और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट मे फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स. तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने स्टॉक के साथ रेडी हो. अब आपको क्या करना है? उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, लॉन्च करना है. नाउ दैट इज द स्टेज व्हाट? इंट्रोडक्शन. जो हम लोगों ने पीएलसी में डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस के बारे में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. सो आफ्टर कमर्शियलाइजेशन नाउ द प्रोडक्ट स्टार्टेड living its life and the first stage is what? Introduction. So it is all about what? New product development process. How to develop a new product. Just think कि you are thinking to develop a new product. So obviously you just go through all this process and at the last stage you are having a clear image or the clear idea about your product that may fulfill the expectation of the customer. So that's all for न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कृपया करके विज क्लासरूम को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हो. थैंक यू दोस्तों.